السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم میتھمیٹیکل اکنامکس پارٹ 2 کو 607 کے لیسن نمبر 9 کو دیکھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کا لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی پریپریشن ہو جائے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کچھ بھی مٹیریل چاہیے ہو، جیسے کہ کرنٹ پیپر وتھ سولوشن بھی آپ کو اس چینل پہ ملیں گے، اور آپ کو کوئزز بھی ملیں گے مڈ ٹرم کے، اور مڈ ٹرم پریپریشن کی ویڈیو بھی ملے گی تاکہ آپ کی بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ پریپریشن ہو جائے اور اچھا سے جی پہ آ جائے۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی تمام مٹیریلز آپ کو یہاں پہ ملیں گے، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ بھی بینیفٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے، تو اس کا جو ہے وہ میں نے آپ سے کوئی پیسے نہیں لینے، میں نے آپ سے کچھ ایسا جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جس میں ایک ہی چیز جو ہے وہ آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دیکھیں، ہم جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ کے کانسیپٹس کلیئر کروانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ نہیں تو ہماری ویڈیو سے جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت تو جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہوگا، تو اس کا جو ہے وہ آپ حق اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ میری چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ آپ کا بھی جو ہے وہ بھلا کرے اور میرا بھی۔ چلیں اب جو ہے وہ ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنزیومر اینڈ پروڈیوسر سرپلس انالیسس یوزنگ انٹیگرلس۔ اچھا جی، انٹیگرلس مینس آپ کو پتہ ہے انٹیگریشن والا سسٹم ہوگا یہاں پہ۔ اب کنزیومرز کیا ہوتے ہیں؟ یو نو آلسو دیٹ کہ کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جو خرید و فروخت والا جو خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے۔ اب سرپلس کیا ہوتا ہے؟ سرپلس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو زیادتی ہونا، کسی چیز کا جو ہے وہ زیادہ ہو جانا۔ سپوز کرتے ہیں میں آپ کو ایک جو ہے وہ ایک ایگزامپل بتا دوں، جیسے کہ آپ جو ہے ایک چیز خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کنزیومر جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے وہ خریدتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو 1000 روپے میں خریدتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 800 ہوتی ہے، تو سرپلس کتنا ہوا؟ 200 ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس دوسرے لفظ میں ایک اس طرح بھی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے سپوز کرتے ہیں کہ جو ہے وہ 10 سوٹ ہیں، جس میں سے آپ کو جو ہے وہ 5 سوٹ جو ہے وہ 5 سوٹ کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے، باقی جو سرپلس کتنا رہ گیا؟ 5 سوٹس رہ گئے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سرپلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 31 ہے کنزیومرز ولنگنیس ٹو پے یوزنگ انٹیگرلز۔ اب دیکھیں، آپ نے نا زیادہ جو اس میں چیز ہوتی ہے آپ کی میتھمیٹیکل ہوتی ہے، زیادہ جو آپ کا تھیوریٹیکل چیزیں نہیں ہوتی، اور جتنا آپ غور سے اس چیز کو سمجھیں گے، تھوڑا سا دھیان جو ہے وہ باقی چیزوں سے ہٹا کے آپ اس طرح ویڈیو کی طرف آئیں، اور اگر کہیں سے آپ سے مسنگ ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو ویڈیو کو پاز کر کے یا جو ہے وہ بیک جا کے دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اب آپ نے ایک ایک پوائنٹ اچھے سے سمجھنا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو ہے وہ آپ دور ہو جائیں، اپنے جو ہے وہ سیپریٹ ہو کے اس چیز کو سمجھیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ اچھے سے سمجھ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں سپوز دیٹ کنزیومرز ڈیمانڈ فنکشن فار اے سرٹین کوموڈیٹی از پی کیو از اکول ٹو دس۔ یہ کنزیومرز جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ فنکشن وہ ہمارے پاس یہ چیز دی گئی ہے، اب ڈالرز پر یونٹ پر دی گئی ہے، ٹھیک ہو؟ یعنی پر یونٹ جو ہے وہ ڈالر پر دی گئی۔ اب فائنڈ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کنزیومر کا سرپلس فائنڈ کرنا ہے، اور اگر کنزیومر از ولنگ ٹو اسپینڈ 3 یونٹس آف دا کوموڈیٹی، اگر جو ہے وہ کنزیومر 3 یونٹس جو ہے وہ اسپینڈ کر رہا ہے، تو ہمیں کنزیومر کا کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے؟ سرپلس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو گرافیکلی آپ کے پاس چیزیں دی ہوئی ہیں، میں اس گراف یہ جو اسٹارٹنگ دیا ہوا ہے ایک چیز کو وہ آگے بڑھاتے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو فائنل رزلٹ میں دکھاؤں گی کہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لمٹس دی ہوئی ہے، جیسے 0 3 5 پوائنٹس تک دیے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ 100 دیا ہوا ہے، ایک ہمارے پاس یہ جو ہے وہ گراف بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پیرابولک ہو گیا ہمارے پاس، اور یہ ہمارے پاس ایسے یعنی ڈالر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور ایکویشن جو ہمارے فنکشن کی ایکویشن کیا ہے ہمارے پاس، یہ جو ہمارے پاس یہ جو چیز آ جاتی ہے یہ ہماری جو ہے وہ فنکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ کیو ہمارے پاس یونٹس ہے، اور پی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈالر پر یونٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کیو ہمارے پاس یونٹس ہوتے ہیں، اور پی جو ہے وہ یہ پر ڈالر پر یونٹ ہو گیا۔ اب جو ہے وہ ہمارے پاس جو گیون کیا چیز ہے، کیو ہمیں کتنا دیا گیا ہے، مطلب کتنا اسپینڈ کرنا ہے، ہم نے 3 اسپینڈ کرنا ہے، اور ایکویشن ہمارے پاس کیا تھی اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ کے سامنے پی از اکول 4 × 25 مائنس کیو اسکوائر تھی۔ اب جہاں جہاں پہ ہمارے پاس اس ایکویشن میں، ٹھیک ہو گیا، اس ایکویشن میں ہمارے پاس جہاں جہاں پہ کیو ہے وہاں پہ ہم نے ویلیو پٹ کی تھی، تو یہ دیکھا آپ کے پاس یہ بن جائے گی پی 3 از اکول ٹو 4 × 25 مائنس 3 کا اسکوائر از اکول ٹو 64۔ جب آپ اس کو سولو آؤٹ کریں گے، جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ اس ایکویشن کو سولو کریں، تو جیسے 4 ہے، یہ 25 ہے، مائنس 9 ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ 25 میں سے 9 چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا؟ آئی تھنک جو ہے وہ 16 ہو جائے گا، اور 4 ضرب 16 کریں گے تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ 64 آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ جو آپ کے پاس یہ انہوں نے فائنل رزلٹ دکھا دیا۔ اب جو ہے ویژولائزنگ گراف جو ہے نا انہوں نے بتایا، اگین انہوں نے جو ہے وہ یہ والی لائن لگا دی، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہماری یہ پی ہے، یہ ہمارے یہ پی ڈالر پر یونٹ ہے، یہ کیو ہے، یہ ہمارے پاس پوائنٹس ہو گئے۔ اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اب یلو لائن جو ہے وہ ہمارے پاس جو انہوں نے ڈرا کی ہے یہ والی، تو وہ کہتے ہیں کہ
demarcates an approximate triangle and a rectangle, allotting proper names to triangle AP del P star KP and rectangle। ठीक हो गया, समझ आ गया। अब वो कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इन्होंने जब ये लाइन लगा दी, पहले हमारे पास जो है वो मैं आपको दिखाते चलूँ, ये चीज़ थी, ठीक हो गया। ये जो चीज़ थी हमारे पास स्टूडेंट्स, तो एक मिनट, हाँ ये चीज़ थी पहले। अब जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाइन लगा दी तो हमारे पास दो शेप्स बन गई। अब एक शेप क्या बन गई, दूसरी शेप क्या बन गई। अब ये वाली जो शेप है, ये वाली हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल बन गई, ठीक हो गया। और ये जो शेप है, ये बॉक्स बन गया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक हो गया। अब जो है वो हमारे पास पॉइंट्स देखें, आपके पास जो है वो ट्राइंगल जो है वो पी स्टेरिक EP आ गया। अब पी स्टेरिक EP कहाँ से आ गया मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, और ओ क्यू स्टेरिक EP स्टेरिक कैसे उन्होंने नेम दे दिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइनल रिजल्ट पे, यहाँ पे आ जाए, ठीक हो गया। अब जो है वो हमारे पास एक दिया गया था पी स्टेरिक EP दिया था। देखिए अब ये P है, इन्होंने इस चीज़ को पी स्टेरिक का नाम दे दिया, इस पॉइंट को E का नाम दे दिया, और ये हमारे पास P मौजूद है। अब ये जो ट्राइंगल बनी है हमारे पास क्या बनी है, पी स्टेरिक EP बन गई, ठीक हो गया। और जो हमारे पास जो रेक्टेंगल बना था ये O है, ये पॉइंट Q स्टेरिक का नाम दिया, ये E का नाम है, ये P स्टेरिक का नाम है। तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या बना है, OQ स्टेरिक EP स्टेरिक, ठीक हो गया, समझ आ गई जी। अब देखते हैं मैथमेटिकली स्पीकिंग, हम देखते हैं अब मैथमेटिकली हमने ये काम करना है। अब आपको पता होगा कि हमें जो स्पेंड हमने कितने करने थे, 3 यूनिट्स करने थे, ठीक हो गया। हमने ऊपर जो ऊपर सबसे स्टार्ट पे हमने जो देखा था 3 यूनिट्स हम स्पेंड कर रहे थे। तो हमारी जो डेफिनेट इंटेग्रल होगी वो भी सारी बात क्या होगी, हम देखते हैं। अब जो है वो हमारे पास जो वैल्यू थी, ये वाली हमारे पास वैल्यू क्या रही, फंक्शन था P = 425 - Q स्क्वायर। सबसे पहले हमें इस पर जो है वो अप्लाई करके देखेंगे कि हमने इंटीग्रेशंस ली 0 से 3 तक P of Q = P dQ, यानी जो हमारे पास P of Q की वैल्यू है, यानी ये जो P of Q इसको नाम दे सकते हैं। और इसको ये हमारे पास P of Q की जगह पे हमने 425 - Q स्क्वायर आ गया, और ये dQ की जगह पे dQ आ जाएगा, ठीक हो गया। और 0 से 3 तक हमने इसकी जो है वो लिमिट ले ली, ओके। अब इसके बाद द शेप ऑफ द होल शेडेड एरिया इज ट्रेपेजॉइड, वो अब कहते हैं ये तो हमने ले लिए, लेकिन अब जो है वो हमने जो हमारा शेडेड एरिया है, ठीक है, ट्रेपेजॉइड जो कि OQ स्टेरिक EP बनता है। अब OQ स्टेरिक EP कैसे बनता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये OQ स्टेरिक E और ये हमारे पास कौन सी शेप बनती है, ट्रेपेजॉइड बनती है, ठीक हो गया। पहले मैंने ये बताया था, ये ट्राइंगल बनती है, ये रेक्टेंगल बनती है, लेकिन हम जब इनकी बात करते हैं तो ये मेरे पास ये और ये इस P तक जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रेपेजॉइड जो है वो शेप बन जाएगी, ठीक हो गया। अब जो है वो हमने इकोनॉमिकली वो कहते हैं सेंस ऑफ इट इज़ द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे टू फॉर 3 यूनिट्स, हमें पता है कि हमारे पास जो है 3 यूनिट्स यूज़ किए गए हैं। अब जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन 3 यूनिट्स हम जब बात करते हैं तो हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, क्वांटिटी हो जाती है। तो अब जो है वो OQ स्टेरिक EP स्टेरिक जब हम ले रहे हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम जो है वो रेक्टेंगल का ले रहे हैं, ठीक है, हमने दोनों के रेक्टेंगल का भी फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल का भी। OQ स्टेरिक EP स्टेरिक, यानी हम इनका जब लेंगे, ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, OQ स्टेरिक मल्टीप्लाई OP स्टेरिक, एक मिनट जो है जी, इसको OQ स्टेरिक मल्टीप्लाई जो है हम कर देंगे OP स्टेरिक से, ठीक हो गया, मोड्स में। अब जो है वो, और इसके बाद ये इक्वल हो गया हमारे पास P स्टेरिक E, यानी जो है वो P स्टेरिक E मल्टीप्लाई EQ स्टेरिक हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास हमें पता है जो चीज़ इसके इक्वल है वो इसके इक्वल है, जो इसके इक्वल है वो इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। पॉइंट्स हमारे नेम चेंज हो जाएंगे। अब जो है वो हमने क्या करना है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल शेप, इकोनॉमिक सेंस ऑफ इट इज़ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप है जो हमने ये वाली बनाई है, ठीक हो गया, रेक्टेंगल शेप है, और इसको इकोनॉमिकली सेंस में हम क्या कहेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर शेप, उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम कहेंगे इसको, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास ट्राइंगुलर एरिया है जिसमें हमारे पास P स्टेरिक EP हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ P स्टेरिक ये E और ये P, एक मिनट अगेन बता देती हूँ, ये देखिए P स्टेरिक E और ये P, ठीक हो गया। ये आपका जो है वो ट्रायंगल शेप एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद इसको जो है वो हम दिस इज़ द ट्रायंगुलर शेप कहते हैं, बट इकोनॉमिकली सेंस में हम इसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। जो कंज्यूमर का जो बच गया था बाकी हिस्सा, ये हमारे पास जो है वो हिस्सा क्या आएगा, कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो है बस वो थोड़ी सी चीज़ें आपने बतानी, एक दफ़ा आप देखेंगे ना इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म में आ जाते हैं।
अब 0 से 3 तक हमने ले लिया। अब हमारे पास जो इसका टोटल बनता है, हमने देखा था एक हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर बना था और एक ट्राइंगल बनी थी, ये जो ट्रेपेजॉइडल शेप से। तो उसका जो रेक्टेंगुलर जो था वो क्यू स्टेरिक ई पी स्टेरिक था, प्लस और जबकि हमारे पास जो ट्राइंगल था वो पी स्टेरिक ई पी था। अब यहाँ पे हमने दोनों को जो है वो सोल्व आउट करना होगा। अब जो है वो हमने निकालना क्या है, ट्राइंगुलर एरिया इज द डिफरेंस ऑफ एरिया अंडर द कर्व एंड एक्सपेंडिचर ऑन द यूनिट्स। अब हमें पता है जो ट्राइंगुलर एरिया है ये किसके इक्वल होता है, जब ये जो चीज़ है ना ये इक्वल की इस साइड पे आएगी, माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास ट्राइंगुलर जो है वो एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है वो हमारे पास ये हमने इधर ही रखा और ये जो चीज़ है हम इधर ले आए, तो ये माइनस का जो है वो ओ क्यू स्टेरिक ई पी बन जाएगा। अब पी एफ क्यू डी की जगह पे हमने ये पुट किया, माइनस और 0 से लेकर 3 तक हमारी लिमिट्स होगी। और ये जो है वो इसको हम कह सकते हैं ओ क्यू स्टेरिक मल्टीप्लाई ओ पी स्टेरिक भी बोल सकते हैं। आप इस इक्वेशन के यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। ओ क्यू स्टेरिक जो को हम जो है वो ओपी स्टेरिक को जो है वो हम क्या कह सकते हैं, ओपी स्टेरिक से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो है चलें जी यहाँ पे आ जाते हैं, यानी ईपी की जगह पे हम ओपी भी कर सकते हैं कि ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है डल स्टेरिक, यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। अब जो है पुटिंग द फार्मूला न्यूमेरिकली हमने देखना है। अब जो ये चीज़ है हमने इसकी सेपरेटली जो है वो इसकी क्या ले लेनी है, इंटीग्रेशन ले लेनी। ठीक है, 4 हमारा बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है क्योंकि, और इसको 25 डी क्यू की माइनस क्यूज़ के डी क्यू की इनके हम सेपरेटली लेंगे। और ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है 3 जो हमने पर जो है यूनिट हमने जो स्पेंड की हैं। और ओ पी का जो है वो हमने ऊपर निकाला था 64 आंसर निकाला था, अगर आपको याद हो। ठीक हो गया। जो हमारे पास इक्वेशन होती थी ये वाली, इसमें हमने क्यू की जगह पे 3 पुट करके इसका स्पाइनल सोल्यूशन निकाल 64 जो कि ओपी स्टेरिक था, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवा। ठीक हो गया। अब 4 आगे 25 आ गया। अब ये जो क्यू है इसकी जगह पे 25 के था, 25 हमारे पास जब बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन लेते हैं हम डी ऑफ क्यू की, यानी 1 रह गया था तो हमारे पास क्यू ही आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसकी हम अलग से लेंगे। और जो हमारे पास ये क्यू स्केयर है, क्यू स्केयर की हमारे पास क्या आ जाती है, क्यू क्यू बाय 3 आ जाएगा, 0 से 3 तक लिमिट आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये फाइनल जो है वो हमारे पास -3 मल्टीप्लाई जो 64 से 192 आ जाएगा। ना अब देखते हैं हमारे पास ये जो चीज़ है, हमने इसको जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने इस पर अप्लाई करनी इन दोनों पे। तो अपर लिमिट से यानी जो हमारे पास 25 तो इंटू हमारे पास क्या आ जाएगी, बाहर तो 4 है ही, तो अपर लिमिट हमारे पास 3 है और माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है इसकी 0 है, ये हमने पुट कर देनी यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है क्यू में। क्यू की जगह पे ऊपर पहले अपर लिमिट 3 पुट की, माइनस लोअर लिमिट हमने 0 की, क्यूब आ जाएगा तो 25 तो -192। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो है 4 25 इंटू 3 आ जाएगा और -9 आ जाएगा, इज इक्वल सॉरी -9 192 आ जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट निकलेगा वो जो है वो 72 आ जाएगा। और ये चीज़ें जो है वो आपको सिंपल सी चीज़ें जो आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास ये हो गया कि कंज्यूमर जो सरप्लस हमारे पास क्या निकला है, स्टूडेंट्स पे ट्राइंगल ऑफ पी स्टेरिक ई पी जो वो है वो हमारे पास जो है वो 72 निकला है। ठीक हो गया। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने और यही चीज़ फाइंड करी थी, कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना था, और ये जो है वो हमारा निकला है। इसमें ज़्यादा चीज़ आपकी करने की नहीं है, डायरेक्टली आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, आप इन चीज़ों को करेंगे और जो है वो ऊपर आपको पता है पी की और उसकी क्यू की जो आप सॉरी आप उनकी जो वैल्यू निकालते हैं 64 और पी जो क्यू हमारे पास 3 था वो आप सोल्व आउट करके इसमें सिंपल डायरेक्ट इसको जो है सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो है वो टॉपिक नंबर 32 में आ जाते हैं हम लोग, कंज्यूमर सरप्लस यूजिंग इंटेग्रल्स। यहाँ पे भी कंज्यूमर सरप्लस यूजिंग इंटेग्रल्स करना है। अब पी जो है वो हमारे पास यही ये वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू हमारे पास जब वो 64 है। ग्राफिकली आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है वो फंक्शन की जो है वो वैल्यू निकालनी होती है। क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 64। सो हमारे पास पी ऑफ क्यू जो है वो हमारे पास कितना है 80/3√Q है। तो क्यू की जगह पे हमने यहाँ पे जो है वो क्या पुट करते हैं 64 पुट किया, सोल्व आउट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। और आपको पता है 4 का 3 करेंगे 3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। जब हम इसको कट आउट करेंगे 4 को 80 से तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट ये मिल गया। अब यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ग्राफिकली है कि कंज्यूमर सरप्लस और एक्चुअल एक्सपेंडिचर बराबर किसके होता है, कंज्यूमर्स विलिंग टू पे हो जाएगा। ठीक है, विलिंगनेस टू पे आ जाएगा। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है कि कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे कितना किसके इक्वल होता है, इन दोनों के इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। कंज्यूमर सरप्लस होता है और प्लस एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफिकली हमें देखा गया है तो यहाँ पे हमारे पास इसको पी स्टेरिक का नाम दिया गया, इसको ई क्यू स्टेरिक और ई का नाम दिया गया। यहाँ पे हमारे पास पी मौजूद है। ठीक हो गया। यहाँ पे वही मैथमेटिकली फॉर्म में आएगा जैसे, यानी कि हमने क्या करना है इसको पी एफ की डी क्यू यानी 0 से 64 लेने, क्योंकि 64 हमारे पास गिवन है और 0 से हमने लिमिट अप्लाई करनी 0 से 64 तक 80/Q√3 आ जाएगा डी क्यू। अब हमें पता है वही चीज़ आ जाती है, आप ओ क्यू स्टेरिक ई पी स्टेरिक आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ओ क्यू स्टेरिक आ गया। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद जो है वो ई पी स्टेरिक आ गया, ये दोनों जो है वो इक्वल हो गया। और तो मतलब ओ क्यू स्टेरिक मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, ओ पी स्टेरिक। ओ क्यू स्टेरिक किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ पी स्टेरिक के। समझ आ गई।
ठीक हो गया। ये आपको पहले से भी पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको, और प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो नाउ जो है वो हमने ये देखना है कि ट्राइंगुलर, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर में हो गया हमारे पास। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का आप याद रखिएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर में हमारे पास रेक्टेंगुलर ही होता है। ट्राइंगुलर एरिया में जो है वो कंज्यूमर सरप्लस, जैसे कंज्यूमर सरप्लस होता है, यानी कि ट्राइंगुलर एरिया डेल पी क्रॉस स्टेरिक ईपी जो है वो इज़ द कंज्यूमर सरप्लस होता है। ये आपने दोनों चीज़ें याद रखी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर में हमारे पास रेक्टेंगुलर ही चीज़ होती है, और जो ट्राइंगुलर एरिया होता है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकलता है उससे। ठीक हो गया। अब ये सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं हम, यहाँ पे वही हमारे पास चीज़, ये इक्वेशन आ जाती है 0 से 64। अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ओ की स्टैरिक मल्टीप्लाई ओ पी स्टैरिक के प्लस डेल पी स्टैरिक ई पी के आ जाएगा। ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे किसके इक्वल होता है, हमारे पास सरप्लस प्लस कंज्यूमर सरप्लस प्लस, जो यहाँ पे मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ, ये रहा कंज्यूमर सरप्लस प्लस एक्चुअल एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। चलिए आपने ये चीज़ जो है वो इस फार्मूले के तहत कर ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने डेल पी स्टैरिक ई पी करना होता है। आपको पता है ये जो किसके इक्वल होता है, जब ये चीज़ इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी यही चीज़ दिखाई थी, ऊपर भी यही चीज़ थी, आपकी ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने इसका सेपरेटली ये क्यू जो है क्यू की पावर 1/3 वो इक्वल ऊपर जाएगी, तो वो माइनस की 1/3 आ जाएगी, क्योंकि माइनस है। और ओ की स्टैरिक मल्टीप्लाई किसके इक्वल 64 के, और ओ पी स्टैरिक हमारे पास जो निकाला था हमने आंसर 20 के आ गया था। ठीक हो गया। अब जो है वो फाइनल आपने इसको क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 64, ऊपर -1/3 + 1, नीचे भी -1/3 + 1 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ज़रब किया 1280 आ जाएगा। सिंपल जो है स्टूडेंट्स हम जैसे करते हैं 80 और दिस आ जाएगा आपके पास, फिर -120 80 × 3/2 आ जाएगा, और क्योंकि पावर 2/3 0 से 64। फाइनल आप रिजल्ट निकालेंगे, आपके पास रेक्टेंगुलर 640 आ जाएगा, जो कि आपने यही चीज़ निकालनी थी। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंशियल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस यूजिंग इंटेग्रल्स के। इसमें हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स एक इक्वेशन गिवन है, ये चीज़ P = 60 - 2Q² के आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइस जो हमारे पास जो फर्स्ट कस्टमर है, जो वो उसकी जो प्राइस रिजर्वेशन प्राइस जो है वो हमारे पास $42 है, और सेकंड कस्टमर की जो चार्जेस हैं वो हमारे पास $10 है। तो हाउ मच सरप्लस डज द फर्स्ट कस्टमर लॉस फ्रॉम द नॉट बीइंग चार्ज द लोअर प्राइस, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सिंपली आ जाए, इन दोनों को सामने रखते हुए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। हमारे पास जो है वो P जो गिवन है, हमारे पास क्या है 60 - 2Q² है। अब रिजर्वेशन प्राइसेस जो फर्स्ट पर्सन की है वो P1R, R का मतलब रिजर्वेशन, P का मतलब प्राइस, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन की, वो हमारे पास 42 है, और सेकंड पर्सन की रिजर्वेशन प्राइस है वो क्या है 10 है। ठीक हो गया। अब जो है फर्स्ट यहाँ पे हम फर्स्ट को देखेंगे, डिमांड हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है P1R = 60 - 2Q1R का स्केयर हो जाए। ज़ाहिर बात है Q है तो Q1 का स्केयर, P1 के हिसाब से फाइंड आउट करें तो Q1 का स्केयर आ जाएगा। अब जो है वो हमारे पास हमें पता है ये इसकी वैल्यू हमारे पास P की वैल्यू हमने क्या निकाली 42 है, और ये हमने इसको रखा, और 2Q1 का स्केयर आ जाएगा। अब इसको फाइनली 2Q1 का स्केयर इक्वल के साइड पे जाएगा, और 42 इक्वल के साइड पे आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 60 - 42 आ जाएगा, और 2 जो यहाँ पे 2Q1 का स्केयर, तो ये जो है वो यहाँ पे इक्वल के साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे Q1 का स्केयर = 9 आ जाएगा, क्योंकि 60 में से 42 निकालेंगे, हमारे पास 10 में से 2 चला गया, मतलब 8 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो Q1 का स्केयर जो है वो हमारे पास क्या आया है, 9 आया है। ठीक हो गया। अब जब इसको करेंगे तो Q1 का स्केयर 3 का स्केयर जो स्केयर अंडर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास Q1 = 3 आ जाएगा। सिंपल हो गया। इसके बाद जो है वो इसी तरह आप P2R के हिसाब से करेंगे, वही आपने P2R की जगह पे 10 पुट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, Q2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसके बाद जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर OQ1 × OP1R के है, OQ1 3 है, और P जो है हमारे पास 42 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे करेंगे, तो यानी आपने इंटीग्रेशन करनी है, जो आपके पास गिवन फंक्शन है। अब यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट किया, और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 162 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसी तरह आपने इसका करना है OQ1 × OP1, सॉरी यहाँ पे आप Q1 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे आप OQ2 करेंगे, और यहाँ पे OP2 की R करेंगे, क्योंकि आपके पास जो है ये आप दूसरे पर्सन के हिसाब से फाइंड करें। क्या करेंगे OQ2 ये बार मल्टीप्लाई OP2 बार। ठीक हो गया। ये आपने P2 करना है, ये बाय मिस्टेक इनसे 1 लिखा गया। ठीक हो गया। यहाँ 5 × 10 करेंगे 50 आ जाएगा। आपने 0 से Q2 का इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन की, वही आपके पास सिंपल जो है वो रिजल्ट क्या आ जाएगा 216.667 आ जाएगा। इसके बाद जो है वो अपने कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना होता है। ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करने के लिए CS1 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे देखें 162 हमारे पास जो कंज्यूमर विलिंगनेस निकली है, उसमें से आपने माइनस कर देना है एक्चुअल वैल्यू को। जब एक्चुअल वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स निकल आएगा 36 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसका भी आपने क्या करना होता है कि जब आप जो है वो
कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे में से आपने माइनस कर देना है इसकी जो है वो एक्चुअल का एक्सपेंडिचर को, तो आपका पास जो है वो कंज्यूमर सरप्लस निकल आएगा 166.667 आ जाएगा। अब जो है डिफरेंशियल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, अब दोनों का निकला, दो पर्सन का निकला, तो इनमें से हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास CS2 माइनस CS1 करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आपके पास 130.667 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो ये कहते हैं इंटरप्रिटेशंस अगर देखी जाए तो फर्स्ट पर्सन लॉसेज, फर्स्ट पर्सन का जो है वो लूज मतलब कम है फ्रॉम पोटेंशियल सरप्लस व्हेन कंपेयर टू द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का ज़्यादा निकलता है और फर्स्ट पर्सन जो है वो जो लॉस में है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर 34, प्रोड्यूसर एंड सोशल सरप्लस यूजिंग इंटेग्रल्स। अब P आपके पास दो तरह के हैं, P 60 माइनस 0.6Q है आपके पास यहाँ पे, और ये P = 20 प्लस 0.2Q है। अब फाइंड हमने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, फाइंड हमने यहाँ पे करना है कि टोटल यानी सोशल सरप्लस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो है वो फॉर इक्विलिब्रियम आउटपुट द लेट प्राइसेस इन डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस बी इक्वल 60 माइनस 0.6Q = 20 प्लस 0.2। अब यानी आपके पास जो दो इक्वेशंस यानी एक इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये है। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने जब इन दोनों को कंपेयर किया है इक्वेशन 1 और 2 को, तो यानी 60 माइनस 0.2Q बराबर हो जाएगा। ये मैं आपको बताती चलिए यहाँ पे करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि आपके पास जो है वो 60 माइनस 0.6Q बराबर हो जाएगा 20 प्लस 0.2Q के। ठीक हो गया। अब ये जो Q की वैल्यू हम एक जगह पे कर लेंगे और 60 वाली की इनको हम एक जगह पे कर लेंगे। ठीक हो गया। जब इनको करेंगे तो मेरे पास 60 माइनस 20 आ जाएगा इक्वल टू, और 0.6 जो है वो यहाँ इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस का 0.2Q के साथ हो जाएगा। तो मतलब हमने 60 प्लस 20 निकाला, 40 आ जाएगा, और इन दोनों को जमा के 0.8Q आ जाएगा। तो जब ये किया तो मैंने क्या किया, जब 40 = 0.8Q आ जाएगा तो ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 0.8 = जो है वो Q स्टाइरिक बन जाएगा। तो अब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, Q स्टाइरिक = 50 आ जाएगा। तो आपने जो है वो क्या करना है, P स्टाइरिक यानी इसको नाम दे देना है P स्टाइरिक। इसी क्वेश्चन नंबर 2 को हम ले लेंगे, इसको हमने क्योंकि Q स्टाइरिक की वैल्यू निकली तो इसको हम P स्टाइरिक का नाम देंगे इक्वल टू 20 प्लस 0.2Q स्टाइरिक। Q की जगह पे हमने 50 पुट किया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये P स्टाइरिक = हमारे पास क्या निकलाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स से, सिंपली ये आपके यहाँ ये आपके जो है वो एक डायग्राम बनती है। तो यहाँ पे आप इसके पॉइंट्स देख सकते हैं। ये आपके पास A पॉइंट है, ये P0 पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये E0 पॉइंट है। अब यहाँ से आपके दो तरह की जो है वो शेप बन रही है। शेप कैसे बन रही है, एक तो आपके पास बन रही है, मैं आपको बताती चलूँ, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस बन रही है। कंज्यूमर सरप्लस आपके पास क्या बन रही है, A P0 E0, ये क्या बन गई आपके पास स्टूडेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस बन गई। ठीक हो गया। दूसरी आपके पास एक और शेप बन रही है जिसका नाम B P0 E0 है, जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस है यहाँ पे। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये जो दो चीज़ें आपकी बन रही हैं इसमें क्या, जिसको यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल होता है, आपको ये फार्मूला वैसे भी याद होना चाहिए और आपको पता भी होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, यानी हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ही मीन्स दैट परपेंडिकुलर को भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप आई थिंक उर्दू में अमूद बोलते हैं शायद, ऐसे ही। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राइंगल ऑफ ए P0 E0 का पॉइंट करेंगे, यानी A P0 E0 का। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई आपने क्या किया, P0 E0 ले लिया पहले, P0 E0 मल्टीप्लाई A P0। ठीक हो गया, यानी बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड हो गया। इसके बाद जो है वो आपको पता 1/2 P0 E0 की वैल्यू 50 है और A P0 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 30 निकाली थी। ये आपने निकाली और इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है वो 750 आ जाएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर एरिया ऑफ, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी अगर आपको ना समझ आए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे P0 E0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 50 है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाली, और A P0 की जो वैल्यू कितनी है, जैसे ये आप देख सकते हैं 30 कैसे, ये 30 से लेकर 60 तक जाएंगे, कितने नंबर 10 20 और 30 नंबर का डिफरेंस है, तो हमारे पास जो है वो 30 पुट करेंगे, आपके पास 750 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो आप ये देख सकते हैं B P0 E0 की जैसे हमारे पास ये चीज़ है, तो 1/2 मल्टीप्लाई P0 और E0 आ जाएगा, P0 और ये E0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय B P0 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो P0 E0 जो है वो हमारे पास 50 है, और इसमें B और P0 के दरमियान कितना फ़र्क है, 20 से लेकर 30 तक है, तो मतलब 10 नंबर का फ़र्क है। तो आप यहाँ पे 10 वैल्यू पुट करेंगे और आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा P ट्रायंगल ऑफ P P0 E0 = 250 आ जाएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फाइनली वी कैलकुलेट द
सोशल टोटल सरप्लस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास, ठीक हो गया। कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के इक्वल हो जाता है सोशल टोटल सरप्लस। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है यहाँ पे, और ये जो चीज़ है फिर इसके आप इसमें देख सकते हैं ए बी ई नॉट इज इक्वल टू, ये देखिए ए बी ई नॉट मतलब कैसे, मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे ए बी ई नॉट ये टोटल आ जाता है, इनका टोटल, जिसमें ये दोनों के अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों के इनके सम के इक्वल होता है। तो आपने इनका जो है सम कर लेना है और इनकी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास 1000 जो है वो इसका आ जाएगा। इन सोशल सरप्लस जो है वो हमारे पास कितना निकला है, 1000 यूनिट्स निकला है। इसके बाद टॉपिक नंबर 35 पे आ जाए स्टूडेंट्स। फर्म टू प्रोड्यूस सरप्लस विद टैक्स यूजिंग इंटेग्रल्स के हिसाब से आपके पास टैक्स इंटेग्रल यूजिंग के हिसाब से आपने देखना, ये चीज़ आपके पास इक्वेशन गिवन है। और जो है वो द प्रोड्यूसर हैज़ प्लान टू प्रोड्यूस 12 कंप्यूटर्स, उन्होंने कितने कंप्यूटर्स यूज़ किए हैं, 12 कंप्यूटर्स यूज़ किए हैं मार्केट डिमांड के हिसाब से। और व्हाट इज़ हिज टोटल प्रोड्यूस सरप्लस इफ द मार्केट प्राइस इज 27, वो कहते हैं जब मार्केट प्राइस 27 होगी तो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा, ये देखना है। और इसके बाद जो है वो व्हाट इज़ हिज लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, को क्या लॉस होगा व्हेन ड्यू टू टैक्सेशन की वजह से, जितना जब टैक्स होगा तो हम प्रोड्यूसर सरप्लस को कितना लॉस होगा। ही रिड्यूसेस प्रोडक्शन फ्रॉम 12 to 9 मशीन्स, जब वो उनकी जो मशीन प्रोडक्शन की जो मशीन्स जो होती हैं वो उनको रिड्यूस कर देगा, यानी 12 थी 12 से वो 9 कर देगा क्योंकि टैक्स ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो फिर इस वजह से उनको कितना लॉस होगा, ठीक होगा, ये चीज़ हमें देखनी है। और प्रोड्यूसर्स जो है वो सरप्लस एट क्यू इक्वल 12 है, आपको पता है। और कैलकुलेट एंड मार्केट प्राइस जो है वो हमारे पास 270 आ गया। अब जब वो सी ऑफ क्यू की जो हमारे पास जो फंक्शन है ये चीज़ मौजूद है, अभी हम इसको एम सी क्यू भी बोल सकते हैं, एम ऑफ सी क्यू बोलते हैं। एम ऑफ सी क्यू इसके मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक हो कि डेरिवेटिव ऑफ सी क्यू। इसको जो है वो हम डी ओवर डी एम सी क्यू को हम जो है वो इक्वल कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं डी ओवर डी क्यू सी क्यू के। तो सो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एम सी क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। एम सी क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू डी ओवर डी क्यू, और हमारे पास जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, आपके पास जो है एक वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। जैसे ये क्यू क्यूब था तो ये 3 इधर 3 आ जाएगा, और क्यू की जगह पे यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, माइनस 2 × 9 क्यू आ जाएगा, प्लस 160 क्यू आ जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो क्यू स्क्वायर माइनस 9 to the 18 क्यू प्लस 160 आ जाएगा एम सी क्यू, ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जो है वो ये आपके पास स्टूडेंट से एक डायग्राम दी गई है, डायग्राम में जो है वो आपने यही रेक्टेंगुलर देखना है और जो है वो ट्रायंगुलर की निकालनी है। अब देखिए आप रेक्टेंगुलर जो है वो हमारे पास क्या है, ओ क्यू स्टेरिक ई पी स्टेरिक है, और जो है वो ट्रायंगुलर देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर जो है आर पी स्टेरिक ई आ जाएगा, आर पी स्टेरिक ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये जो दोनों चीज़ें हमारे से आपने करना है। और आपको पता है जब हम ट्रायंगल फाइंड करते हैं हमारे पास जो है वो किसकी इक्वल होता है, ओपी स्टेरिक क्यू स्टेरिक माइनस ट्रेपेजॉइड ओ आर ई क्यू आ जाएगा, ओ आर ई क्यू यानी ओ आर ई क्यू स्टेरिक, ये आपका ट्रेपेजॉइडल आपको पता है शेप है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इनका ले लेना है। ये आपको ओपी स्ट्राइक की क्यों किसके इक्वल होता है, इनके इक्वल होता है। ये 12,270 जो कि आपको पता है 12 मशीन से 270 प्राइस आ जाएगी, और 0 से 12 लेके हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है। इनका आप सिंपली आप इसको जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास जो है वो ये 2040 इसका जो है वो लास्ट आंसर आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स ये आपकी कुछ जो है वो इक्वेशंस थी। इसके बाद जो है वो इंटरप्रिटेशंस आपके पास जो है 2040 इज़ द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ द कंपनी इफ़ इट प्रोड्यूस 12 यूनिट्स विद मार्केट बेइंग प्राइस। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी आपके पास एक जो है वो वैसे ही सेम चीज़ है। अब ये आपका खुद का टास्क है, ये आप खुद करेंगे। अब देखते हैं आपको क्या समझ आती है क्या नहीं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको जितनी भी ऊपर डिटेल बताई हैं, इसको देखते हुए आपने इसको सोल्व आउट करना होगा, ठीक हो गया। जिस वजह से अगर आपके चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।